Good morning, dear students. We were doing the unit database development, and on the previous video we have discussed about the database, DBMS and types of database. So basically we have learned that database is nothing just an collection of data, and for managing those databases in the computerized way we were using some softwares, that is Microsoft Access, MySQL, Oracle, etc. And these softwares are giving us some features like create, modify, search, edit, extract. Similarly, there is another system that we called RDBMS, and it stands for Relational Database Management System. It also gives the similar features of DBMS, but there is an additional feature, that is relational model. In this model, all the data is stored in a structured tabular format consisting of rows and columns. Means this is similar to the DBMS softwares, but there is one difference, that it uses relational model. हमारी DBMS में जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स हमारे RDBMS में भी हैं, पर RDBMS में हमारा एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल. मीन्स there are so many databases which are connected with the some relational model. So RDBMS is nothing just an advanced feature of DBMS. So जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं DBMS के, वो सारे ही एग्जाम्पल्स हमारे RDBMS के भी हैं. ओके. So for making it more clear, we will take an example of WhatsApp. Okay. So if you remember that आज की डेट में WhatsApp ने जो हमें एक फीचर दिया है स्टेटस का, जिसमें हम अपनी वीडियोस या फोटोज अपलोड करते रहते हैं, ये WhatsApp का एक फीचर पहले नहीं था. So as we are seeing that there are so many changes in our features in our every software, or we can say that softwares are updating time to time. Similarly, the softwares or the system for managing database is also now updated, and that updated system is called RDBMS, and it gives us the feature of relational model. So जैसे कि हमने देखा कि हमने WhatsApp में बहुत सारे फीचर्स अपडेट होते हुए देखे हैं, है ना, वैसे ही हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं. सिमिलरली, जैसे कि हमने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम बनाया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी अपडेट हुआ, जिसे हमने नाम दिया RDBMS. नाउ फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनल मॉडल, it provides us some features, that is primary key. Okay. It also provides a facility to define a primary key for unique identification of each table. ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एक प्राइमरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिस प्राइमरी की से हम टेबल की किसी भी यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Okay. And it provides the features to create, update and administrate a relational database. The relational structure makes it possible to run queries across multiple tables at once. तो ये जो हमारे फीचर्स हैं क्रिएट, अपडेट, एडमिनिस्टर के, ये सारे ही हमें वो प्रोवाइड कराता है रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए. और इसको मेंटेन करने के लिए हम कैसे उसको रन करवाते हैं? थ्रू दी क्वेरीज.
There are some queries like create, update, select that we discuss later. Okay. Now the question is where all the data are stored. So all the data are stored in the database servers. Now database servers क्या होते हैं? Database servers are dedicated computers that hold the actual databases and run only the DBMS and related software. Database servers ऐसे dedicated computers होते हैं जो होल्ड करते हैं सारे डेटाबेस को. मीन्स डेटाबेस के जितना भी हमारा डेटा होता है, जितनी भी हमारी स्टोरेज होती है, वो सारी एक ही कंप्यूटर में सेव होती है. ठीक है. एंड वो डेटाबेस सर्वर क्या प्रोवाइड करेगा? सिर्फ DBMS के सॉफ्टवेयर्स को ही रन करने को अलाउ करेगा, जिससे हमारे जितने भी डेटाबेस का डेटा है वो DBMS के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हम. Users access a database server either through a front end which displays the requested data or through backend which runs on the server and handles tasks such as data analysis and storage. Means यूजर्स डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं? या तो वो फ्रंट एंड के थ्रू एक्सेस करेंगे या तो वो बैक एंड के थ्रू एक्सेस करेंगे. फ्रंट एंड के थ्रू वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जैसे कि उन्हें कोई डेटा को अगर स्टोर करना है तो वो फ्रंट एंड के थ्रू स्टोर करेंगे. अगर उन्हें कोई डेटा चाहिए तो फिर वो फ्रंट एंड के थ्रू ही एक्सेस करेंगे. एंड बैक एंड के थ्रू वो कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे उन्होंने कोई चीज मैनिपुलेट करनी है या फिर आपको कोई अपडेट करना है, कोई कॉलम से इंक्रीज करने हैं या आपको कोई चेंजेस करने हैं कॉलम से, वो सब हम किस में करेंगे? बैकएंड के थ्रू करेंगे. ओके. नाउ द थर्ड इज दिस टाइप ऑफ डेटा एक्सेस इज रिफर्ड टू एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल. इन दीज टाइप्स के एक्सेस को, डेटा एक्सेस को हम क्या कहते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल. नाउ व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल? दिस इज अवर क्लाइंट सर्वर मॉडल. ये होता है हमारा सर्वर जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है. ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ये रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू सर्वर को, और जब सर्वर डेटा को भेजेगा तो उसे हम कहेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा अपने क्लाइंट्स को. तो जो भी कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंट्स, और जो रिस्पॉन्ड करेगा उसे हम कहते हैं सर्वर. सो the structure we are getting by combining the client and server is known as client server architecture or model. So the next topic is database concept. Database contains objects that are used for storing and managing information. Database कुछ objects को contain करता है जिसके through हम data को store करते हैं और manage करते हैं. So the first is data item. A database primarily contains information about a data item. Data item क्या होता है? हमारा डेटाबेस में जो भी हम पर्टिकुलर डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा आइटम. फॉर एग्जाम्पल, a school database would contain information about students. Here the student is the data item and the database will store details of the data item that is about the student. So school एक हमारा डेटाबेस है. तो स्कूल डेटाबेस है, उसमें हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्टाफ के बारे में, हमारी लाइब्रेरीज के बारे में. तो बहुत सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको कलेक्ट करके हम क्या बनाएंगे? स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे. तो पर्टिकुलरली अभी यहाँ पे बात की गई है स्टूडेंट्स की. तो जो स्टूडेंट है उसका जो हम रिकॉर्ड फिल करेंगे उसे हम कहेंगे डेटा आइटम. सो द सेकेंड टॉपिक इज फील्ड. A field describes a particular attribute of the data item. फील्ड क्या डिस्क्राइब करता है? हमारा किसी भी कॉलम का जितने भी हमने डेटा फिल करेंगे उसको क्या कहेंगे? हम फील्ड कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द फील्ड roll number in students table will store the roll numbers of all the students. जो हमारा एक फील्ड है roll number स्टूडेंट्स टेबल का, वो क्या स्टोर करेगा? सारे रोल नंबर स्टोर करेगा एक सारे स्टूडेंट्स का. ठीक है. जैसे हमने एक टेबल बनाया है, टेबल
स्टूडेंट, जिसमें हमने रोल नंबर बनाया है एक फील्ड हमारा स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल है एंड एड्रेस है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, फील्ड्स होते हैं या कॉलम्स, या हमें इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये जितने भी हमने रोल नंबर्स फिल किए हैं वो हमारे सारे स्टूडेंट्स के होंगे, तो इसे हम कहेंगे फील्ड्स। ओके, नाउ द थर्ड इज रिकॉर्ड्स। A record is a set of information that belong to a data item. रिकॉर्ड क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो बिलोंग करता है डेटा आइटम को। ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ फील्ड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है स्टूडेंट्स नेम की, तो यहाँ पे जो हमारे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ये सब हमारे क्या हैं, फील्ड्स थे। और इनमें जो हम एक पर्टिकुलर डेटा फिल करेंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, जब हम इसे टोटल सारे रिकॉर्ड्स को हम भर लेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहेंगे एक स्टूडेंट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when we enter data for all the fields such as roll number, name, marks etc. for a student, it creates a new record. जब हम roll number, name और marks सबका सारे स्टूडेंट्स का फिल कर लेंगे तो वो क्या करेगा, एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ओके, नाउ द फोर्थ इज वैल्यू और डेटा। A value is a set of characters, text or numerical that you put in while adding information to your database. वैल्यू क्या होती है हमारी, या तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा या सेट ऑफ टेक्स्ट होगा या न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, उन सबको जब हम पुट करेंगे किसी एक डेटाबेस में तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी हमारी, उन सबको हम क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हमने 1 लिखा है, निकिता लिखा है, नेम लिखा है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, एक पर्टिकुलर हमने क्या फील्ड फिट की है, वैल्यूज फीड की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, दीप्ति, 90, 88 एंड 70 आर द डेटा वैल्यूज फॉर द स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, उसने भी ऐसी एग्जाम्पल दिया है कि ये सारी जो हमने वैल्यूज दी हैं वो सब किसकी हैं, स्टूडेंट की है। नाउ द फिफ्थ इज टेबल्स। व्हेन वी पुट ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड वैल्यूज टुगेदर इन अ ग्रिड, इट फॉर्म्स अ टेबल, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स इन अ डेटा बेस। जब हम सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं, जैसे हमने फील्ड्स बना लिए, रिकॉर्ड्स बना लिए और वैल्यूज भी फिल कर दी, तो हम जब उन सब वैल्यूज को फिल कर लेंगे तो और उन सबको एक साथ रखेंगे तो हम वो क्या बन जाएगा, एक ग्रिड के फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे टेबल। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया था, तो ये हमने क्या करा है, कॉलम्स लिए हैं, रिकॉर्ड्स लिए हैं, जब हम इन सबको फिल कर देंगे तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, एक ग्रिड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस। टेबल्स क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है डेटाबेस का। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कैसे है, जैसे कि हमने कहा कि डेटाबेस में हमारे बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डेटाबेस लिया था, हमने स्कूल का डेटाबेस लिया था, तो स्कूल के डेटाबेस में हमारे बहुत सारी टेबल्स बनेंगी, जैसे कि स्टूडेंट की, टीचर्स की, लाइब्रेरीज की, मैनेजमेंट की, इन सब की हमारे जब हमारे रिकॉर्ड्स हम टेबल्स बनाएंगे फिर उसमें हम रिकॉर्ड भरेंगे तो फिर वो सब हमारा क्या बन जाएगा, एक डेटाबेस बन जाएगा। नाउ द लास्ट इज टेबल्स स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स किसके फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फर्दर टुमारो। थैंक यू।